A very good morning to all of you, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us today on day 2 of Salon Management Congress. कल का सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया है, आई एम श्योर वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज लेकर गए हैं और आज भी वही होने वाला है. हमारे बैक टू बैक जो पैनल्स हैं सब नॉलेज बेस्ड हैं और हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे टू डिस्कस लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ the business of running a salon. So I welcome you all, a hearty and warm welcome to everyone, and I request you all to be with us till the end of the day. जिन डेलीगेट्स ने रजिस्टर किया है वो प्लीज़ आफ्टर द लास्ट सेशन मुझसे मिलकर अपना सर्टिफिकेट ले जाएं और I would also request you to keep on asking questions of our experts. पैनल डिस्कशन के हर पैनल डिस्कशन के बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा और आप अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट्स से पूछ सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ इट. Moving on to the first panel discussion of today, which is on staff retention. Staff की problem हर salon को होती है, छोटा बड़ा, एक chair हो या 10 chairs. स्टाफ को ट्रेन करना, उन्हें मेंटेन करना, रिटेन करना एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर किसी के लिए. और आज का जो हमारा पैनल है वो इस रेजिंग टॉपिक पर बात करने वाला है. आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज माय फर्स्ट पैनलिस्ट मिस शाइन जनार्थनन, हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट. शी इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ टाइम मशीन सैलून एंड एकेडमी. Please Shine, come on stage. With 13 years of experience, she is internationally certified hairstylist by City and Guilds London and part of the L'Oreal creative team. A round of applause for Shine, please. My next panelist is Mr. Ashok Paliwal, who is the director and owner of Prabhat Spa and Salon and Institute in Udaipur. He is a legacy unto himself. Apart from being a hair expert, salon owner, educator, and an industry veteran, Ashok ji is also known in the salon circles for his contribution in making the industry an organized and profitable sector and a career option for the next generation. And my final panelist is Sydney Ho, ace hairstylist and beauticians. He is the owner of Meraki Salon. Sydney, can I please have you on stage? He is one of the brightest shining stars of Kolkata's beauty industry. A big round of applause to all our speakers. Welcome all of you and thank you for joining us at Salon Management Congress. मेरी रिक्वेस्ट है हमारे स्पीकर्स से कि जितना हो सके हिंदी में बात करें. हमारे ऑडियंस के साथ बेस्ट कनेक्ट हिंदी में होता है. सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आई विल स्टार्ट विद यू सिडनी, कि एक अच्छी टीम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बिल्ड करते हैं एक अच्छी टीम सैलून के लिए. यू कैन टेक द माइक प्लीज. Good morning. My name is Sydney. I come from Calcutta. And I'm so happy and I'm thankful to Beauty Professional to give me this opportunity to come here. Great team ke liye, very simple. I mean, not simple as to, for a great team, we should be positive. Everything should be, in the sense what I believe is, step process is very important. And your staff boosting team, it should be like, kind of a thing, how we go to the school. How importantly we go to the school. Everything should be in format. Of course, we should know each other what we are doing. For a great team, training is very important. Yeah. Apart from training, you must listen down as a stylist, as your senior. You must listen down to your staff, what they are looking for, address their issues, and not be partial at all. That's very important. Partiality, जो एक चीज है, सबसे importantly, what it makes it breaks you down as a stylist or as a team. So you should, one thing what I understand, there should not be any partiality. It should be transparent, clear कि या आपने को ये करना है, ऐसा नहीं आप अच्छे हो तो आपके लिए स्पेशल, ठीक है तुम्हारे लिए ये. सबसे importantly ये we have to work on that. It should be clear. If you are this, you are a stylist, you should work as a stylist. Like, I'll be very honest with you. हम सब salon वाले हैं यहाँ पर, okay? Like, I used to be a top hairstylist in my team that back in there. Okay, you are a hairstylist, तो ठीक है, where you come at 11 बजे, you come at 11:30, ये छूट है. And then the other stylist is 11:30, मैं तो 10:30 आ जा रहा हूँ. तो I think ये नहीं होना चाहिए.
You are a stylist, you're good, you're giving me good business, you're giving me brand, you're giving me, but timing and principle is very important. This has to be focused. I don't know, I mean, for my personal experience, what I have understood, yeah, but okay, you're a good money generator, you come half an hour late, no problem. But others, you have to come on time. This is what I've faced personally in my working. I have started not getting a salon one day in my, एक दिन भी मैं salon own किया नहीं, मुझे 21 years लगा है. तो ये प्रोसेस में मैं देखा हूँ. इफ यू आर गुड, इफ यू आर नाइस, एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, में आप सब समझ, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए. सबसे जरूरी ये पॉलिटिक्स, ये एक ग्रुप, इसको बंद करना चाहिए. एक अच्छे एटमॉस्फेयर लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, अच्छे सैलून के लिए, ये एक पर्सनालिटी, और ये सो कॉल्ड पॉलिटिक्स हैज टू बी कंट्रोल और स्टॉप्ड. ओके, थैंक यू सिडनी. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत रियल टाइम प्रॉब्लम्स है. शाइन, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस? Is it on? यस, इट इज ऑन. I have an experience of almost 13 years in the industry, 10 years of business. So I'm a second generation hairstylist. Okay. So my mom has been running for the past 23 years. So मैं ये नहीं बोलूँगी easy रहा है ये journey. Obviously staff retention is one of the biggest thing जो हम सारे ही face करते हैं, और कोई भी expert नहीं हो सकता उसमें, just a learning process. But thankfully mom का एक experience था, तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ staff के साथ हैंडल किया है, तो उनका एक लर्निंग प्रोसेस था मेरे लिए, तो विच आई कुड लर्न. बट लाइक आई सेड, नंबर वन इज काफ़ी एक लक फैक्टर भी होता है कि आपको टीम कितना अच्छा मिलता है. ओके, इट्स बहुत बार इनिशियल स्पेशली जो न्यू सैलून ओनर्स होते हैं, उनको एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और एक बहुत अच्छे स्टाफ की बहुत ज़रूरत होता है. ऑब्वियसली यू आर पेइंग अ लॉट ऑल्सो, दैट मीन्स टू देम. सो आपका एक्सपेक्टेशंस उतना हाई हो जाता है, राइट? बट उनका मोर देन द स्किल, आई थिंक व्हाट आई सी नाउ इज द बिहेवियर एंड देयर पैशन टुवर्ड्स द आर्ट. क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा वो देखती हूँ जब मैं अभी भी हायर करती हूँ, उनका काम देखने से ज़्यादा उनका नेचर कैसा है और वो कैसे स्मूथली एक नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जो आर्ट है वो हम, मतलब क्योंकि मैं क्रिएटिव हूँ, मैं सिखा सकती हूँ, सो दैट इज़ द स्ट्रेंथ आई हैव. बट पॉसिबली इफ़ यूर एन इन्वेस्टर, आप किसी और के भरोसे पे रख रहे हो, डेफिनेटली जो स्टाफ है उनका भी आर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. बट विद दैट आई थिंक उनका एक नेचर भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है. आपके साथ ब्लेंड होना, आपके जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके साथ अडेप्ट करना. आपको जितना टेंशन है बिजनेस का, उनको भी उतना ही टेंशन रहना. ये नहीं कि चलो सैलरी मिल रहा है ना, मुझे क्या करना है. सो दैट एटीट्यूड इफ पीपल हैव, देन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. Initially even I have worked with such people, so I know how it is. But now I'm very grateful for the team that I have. They really are good at work, they understand what we want. So वो एक slowly gradually build होना थोड़ा time लगता है. But you need to be lucky to have good people. One more thing I would like to say कि बहुत बार हम we try to adjust according to them. Like जब हम staff hire करते हैं, चलो उसको ये पसंद है, चलो वी विल एडजस्ट, चलो वी विल एडजस्ट. बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो एक एग्जॉशन लेवल आ जाता है कहाँ पे, जब हम सोचते हैं यार ये हद से ज़्यादा पार हो रहा है. सो आई थिंक डे वन से आप स्ट्रिक्ट रहोगे, नहीं ये मेरा पॉलिसीज है, ये मुझे ऐसे चाहिए, आपको मेरे क्लाइंट के साथ ऐसे डील होना है, मेरा सैलून इतना क्लीन दिखना चाहिए, दिस इज माई प्रोटोकॉल्स. अगर आप उसके साथ स्ट्रॉन्ग रहोगे डे वन से, then I think you need to tell them that you're the boss, and you need to work according to my culture and my this thing, because this is my salon at the end of the day. आपका reputation hamper होगा, उसको क्या है, वो तो दूसरे salon में चला जाएगा अगर उसको ये नहीं है. तो वो आपको strong होना बहुत ज़रूरी है. It's okay if they are not able to adjust, you will get somebody else, but you need to be really really strong since day one. That's what I feel. थैंक यू शाइन, दैट दोज वर रियली वैलिड पॉइंट्स. अशोक जी, आपने अभी यंग एंटरप्रेन्योर्स का ओपिनियन सुन लिया है. आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में? टीम बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए? हम बहुत अच्छा सैलून लगाते हैं और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं सभी लोग. आजकल
एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अच्छा एम्बियंस बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं, नीट एंड क्लीन रखें, परंतु वो जो भी स्थापना होती है उस सैलून की, तो उसका जान, आत्मा स्टाफ होता है। तो स्टाफ हमारी जान होता है, और उस जान जो कभी हमारे उसके साथ जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मैं आज के हालात में कहना चाहता हूँ कि कुछ सालों पहले जो ऑनर होते थे उनकी शर्तों पे स्टाफ काम करता था। आज स्टाफ के शर्तों पे ऑनर को काम करना पड़ता है। यदि वो आके कहता है कि दूसरा सैलून पास में खुला हुआ है, ठीक है, मैं वहां जा सकता हूं कि मुझे इतना पेमेंट चाहिए, मैं ये काम करूंगा और ये काम नहीं करूंगा, मैं पेडिक्योर नहीं करूंगा, या मैं वैक्सिंग नहीं करूंगा, या मैं शैम्पू नहीं करूंगा, मैं तो बस लेडीज का हेयर कट ही करूंगा। तो अभी काफ़ी स्थितियां क्रिटिकल हो गई है। जब हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, जब वो आते तो ये बोलते हैं कि हमें वो भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, हम सब करते हैं और एक्सपर्ट हैं। वो सर्टिफिकेट भी लाके दिखा देते हैं, परंतु जब प्रैक्टिकली हम काम करते हैं तो वो चीज़ निकल कर नहीं आती है। सच्चाई धीरे धीरे परतों खुलती रहती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कुछ लोग हमारी एकेडमी में सीखने के लिए आते हैं, आते ही हमें बोलते हैं कि एडवांस सिखाइए, जबकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता है। जब हम उनके चलो एडवांस आपको सिखाते हैं, आइए वन लेंथ कीजिए, तो वन लेंथ करना और सेक्शनिंग करना उन्हें नहीं आता है। तो यदि आप एडवांस कोर्स के लिए हाँ बोल चुके हैं तो आपको बेसिक से शुरू करना ही पड़ेगा, एडवांस कैसे सिखा देंगे। तो बड़ा एक मुश्किल सा माहौल बन गया है। और कुछ मैं समझता हूँ कभी भी स्टाफ के साथ एक बैलेंस हमें व्यवहार रखना चाहिए। वो हमारा परिवार का मेंबर है, फैमिली मेंबर बनता है, परंतु उसकी फैमिली की जो डिस्कशन है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं, उसको ज़्यादा डिस्कस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। जब हम उसको बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर बना लेते हैं तो टाइम के हिसाब से, सैलरी के बाद में ये काम नहीं करूँगा, वो अपने एक्सक्यूज देना शुरू कर देता है। कभी कभी हमारी प्यार और ज़्यादा मोहब्बत का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं कि चलो आज तो मैं नहीं आ रहा हूँ। सवेरे उठ के फ़ोन करेंगे मैं आज नहीं आ रहा हूँ। उन्हें ये मतलब नहीं होता है कि आपका अपॉइंटमेंट है, आपको करना क्या है। कभी कभी तो स्टाफ एक साथ गायब हो जाता है। जी, तो मास मैं सोचता बम्पिंग। हूँ आज हालत काफ़ी बदल चुके हैं। पहले के तरह से जो एक स्टाफ के अंदर जो आपस में तालमेल होता था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। जैसे आज जब माँ बाप के साथ बच्चे की जिम्मेदारियां बहुत कम हो गई कि माँ बाप कुछ भी करें, मुझे कैरियर बनाना है, उसके लिए मैं विदेश चला जाता हूँ, और माँ बाप यहाँ पे अकेले होते हैं, उनको हलवाई भी नहीं करते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो बुलाते हैं माँ को कि मम्मी आ जाइए। तो इस तरह से हमारे जो व्यावहारिक जो चीज़ है, जो गठबंधन है, वो कमजोर कहीं ना कहीं होता जा रहा है। हम चाहे कितना भी प्यार कर दे अपने बच्चे को, पर वो पत्नी के साथ विदेश जाएगा ही जाएगा। उसी तरह से स्टाफ में भी ऐसा ही होता है कि स्टाफ आप कितना भी अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा कमीशन देंगे, फिर भी पड़ोसी सैलून की तरफ नजर रहेगी। वो जो नया सैलून खोलेगा हमारे सैलून में आकर कोशिश करेगा हमारा ट्रेंड स्टाफ को तोड़ के ले जाए। तो बिल्कुल। मुश्किलें काफ़ी है। हर दिन चैलेंज होता है, कल वो आएगा या नहीं आएगा, कल वो आएगा कि नहीं आएगा, कहीं चला तो नहीं जाएगा। और जी, एक प्रॉब्लम और आती है कि स्टाफ अंदर ही अंदर सभी क्लाइंट के नंबर ले लेता है और पास में जाके सैलून खोलता है, और वो सारे कस्टमर को लेके मैं यहाँ हूँ, कोविड के टाइम में देखा मैं घर आ जाऊंगा। हमें किसी लोगों ने सजेशन दिया मैम जी, कि कोविड में आप अपने उनको घर पे क्यों नहीं भेजते हो होम सर्विस के लिए। मैंने कहा भेज दूंगा, कोई बुजुर्ग है, बीमार है, उसके लिए मैं भेज सकता हूँ। परंतु कोविड के टाइम में होम सर्विस शुरू कर दिया है तो एक दिन मुझे पैसा ला के देगा, वो दूसरे दिन अपना सेटिंग कर लेगा। बिल्कुल। तो आजकल बहुत ही एक लालच की जो बात है और एक आपस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं। रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। और वो हमारी केवल यहाँ की इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे पारिवारिक और हमारे बिजनेस और हर जगह से एक विश्वास की जो एक कड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे कमजोर हो रही, मुझे ऐसा लगता है। आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे हैं अशोक जी। तो
आप तीनों की ओपिनियन जानने के बाद मुझे ऐसे लगता है कि सारे ही पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन सैलून ओनर के पर्सपेक्टिव से कितना इम्पोर्टेंट है कि स्टाफ को फैमिली की तरह ट्रीट करे, उनके उनको इंटीग्रेट करे अपने इसमें, और उनके एम्बिशंस की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि हर किसी को लाइफ में आगे बढ़ना है, उन्हें करियर बनाना है, तो ये सैलून ओनर्स को कितना मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए? See, सबसे पहला मैं व्हाट आई अंडरस्टूड सर जी की बात सुनकर, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हाट ही सेड। ये पोचिंग हो रहा है टुडे। माय स्टाफ, मेरा स्टाफ, आज मेरा स्टाफ है 2 हेयर स्टाइलिस्ट। आई विल टेल यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। दे आर लाइक अ बेबी। ये लोग मेरा बच्चा का तरह था। मेरा बैड टाइम व्हेन आई स्टार्टेड विद माय करियर, इन लोग दोनों छोटा से बड़ा हुआ है। दो एक डिफरेंट एकदम एटीट्यूड का बंदा है। 2 एटीट्यूड, एक है क्रिएटिविटी, एक को मैंने दोनों बात कर सकता है, पर मैं अगर इंडिविजुअली देखूंगा, एक बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट एटीट्यूड प्रॉब्लम। एक है बहुत अच्छा काम अच्छा करता है, बहुत पंक्चुअल है, बहुत क्लाइंट से अच्छा बात करता है, बट दोनों मिलता नहीं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज सर जी ने कहा था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम सैलून वाले बोलते हैं भैया हमको वो सैलरी मिल रहा है, हम क्या करें, हमको ये नहीं मिल। एंड सबसे पहला स्टार्ट कहाँ करता है, भैया आप उसको वो किया, वो उसको ये किया। दे इन लोग सब लिख कर रखता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड होती है। हाँ, एकदम लिख कर रखता है, जो मैं भी भूल जाता हूँ वर्क पे। ये ओ वेडनेसडे के दिन में भैया उसको एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स, भैया वो टिप्स लिया, हम टिप्स। तो इट्स एंड देन हेयर स्टाइलिस्ट आता है। हम दिल्ली से काम करें, हम बॉम्बे से काम करें, कितना सैलरी, आई एम टॉकिंग अबाउट माय मार्केट कैलकाटा, 60,000 हो, 60,000, हाँ हम कर देंगे। एक बॉब काटो बेटा, हाँ काट देते हैं बॉब। एंड वंस दे स्टार्ट द जॉब एंड देन आओ, नहीं अभी हम प्रैक्टिस में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अब सैलरी हाउ आई गिव इट टू माय स्टाइलिस्ट। वेरी सिंपल शॉर्टकट। You want 70,000, 80,000, 1 lakh rupees? Yes, you want. I'm ready to give you. Are you giving me for 3 times, 4 times the business? Are you giving me that? If well, you are new, you have come from the city, out of the city, आप यहाँ मेरे पास काम कर रहे हो, I am a brand. आपको मेरे तरफ से यहाँ से रिकग्निशन मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंटली। और दूसरा बात, आप आ गया है ना, स्टाफ को कैसा पंक्चुअल, यू नो हाउ टू गाइड देम विद एंड व्हाट डिड यू से नाउ, योर क्वेश्चन वाज कैसे गाइड करेगा पंक्चुअलिटी में, कैसा एक दूसरा को करेगा। आवर स्टाफ आपसे 10 साल बहुत अच्छा काम किया, भैया 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 भैया, सर सर सर, मैडम मैडम, बस कॉल एंड सैलून खुल गया है। ये होता है, यू नो। इसके लिए व्हाट आई अंडरस्टैंड एज अ हेयर स्टाइलिस्ट, ओनर हेयर स्टाइलिस्ट, आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम माई गुरुज। मैं कुछ भी करूंगा, जो भी करूंगा, मैं फ्लोर में रहूंगा। मेरा क्लाइंट्स है, मैं अपना टच दूंगा, आई विल सी टू इट। एंड हाउ डू आई डू दैट इज, देखिए मैं सब नहीं कर सकता हूँ। जब मैं एक सैलून खोलता हूँ, आज मैं एक सैलून खोल के मैं वही पर्टिकुलर क्लाइंट हमेशा एक मैं रूट टचअप हमेशा नहीं कर सकूंगा। सो एज लाइक स्टाइलिस्ट को प्रोत्साहित करने के लिए आई विल गिव इट माई क्लाइंट्स, आई विल गिव देम टू डू, बट ऐसा नहीं हमको निग्लेक्ट कर देना चाहिए। वहीं से स्टार्ट होता है प्रॉब्लम, वहीं से नंबर लेना स्टार्ट होता है। सो क्लाइंट्स के साथ मैं पर्सनली सोचता हूँ, मैं अपना पर्सनल रैपो रखता हूँ, हेलो कैसे हो, क्या हो, एंड आई मेक श्योर माई एडवाइस इज देयर, बट ऑफ कोर्स नॉट एवरीथिंग माइंड, बिकॉज आई हैव टू रिस्पेक्ट उन लोग का वर्क भी। ऐसा नहीं है कि चल के बोलेगा भैया तो सब चीज, और मेरे साथ हुआ है हकीकत में, भैया आप तो सब कर लेते हो, हम लोग क्या करेंगे, आप तो कर लेते हो, हम लोग तो हेल्पर है। ये मेरा सैलून का जर्नी में ना सर मैडम बहुत प्रॉब्लम। एक दिन था मेरा, मैं सर बैठकर सोचता, बट आई सेड द वर्क हार्ड, वो हार्ड चैलेंज ही वो। आज एक टाइम है, मेरा एक स्टाइलिस्ट है, ओके, ही इज अ वेरी गुड बॉय। वो मेरा साथ एक होता है ना अटूट बंदा, वो चोरी नहीं कर सकता है मेरा साथ वो। बट क्या हो गया, हमको ही इज अ हेयर स्टाइलिस्ट, बट उसको ना ग्रोथ नहीं मिला। मैं सब करो, हमको बोला भैया सब तो आप कर, हम बोला आपका सैलरी, भैया पैसा से क्या, हम दूसरा जगह पैसा मिल जाए। देन आई अंडरस्टूड, ये बेटा को रिकग्निशन चाहिए। दैट्स वे आई रियलाइज, बट ऐसा ना हो कि तुम लेकर चला जाओ। एंड टुडे इज फिट एंड फाइन, ही डज द जॉब। सो यहाँ पर आपका होना चाहिए। और फिर पॉलिटिक्स जैसा हो गया, ग्रुपिज्म हो गया, ये चीज एकदम आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और एक चीज शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप लोग जवाब दीजिए, ये आपका सबसे बेस्ट, आई मीन डोंट माइंड मी टेलिंग यू, आप दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, सॉरी आई मे गो रॉन्ग, तो क्षमा चाहता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंटली आपका इंफॉर्मेशन सैलून का क्या हो रहा है, हु गिव्स द इंफॉर्मेशन टू यू एज अ सैलून ओनर, हु गिव्स द इंफॉर्मेशन टू यू? आई फील ऑल योर जूनियर लेवल स्टाफ,
right? So you need to listen what is happening in your salon. But ऐसा नहीं है सब सुन लो, because उन लोग impress करने के लिए 2 का 4 बना देगा. ये आपको सबका बात सुनकर, what I understand, you have to evaluate. आपको evaluate करके बात करना है, और जो भी बात करना है straight. और सबसे important, स्टाफ को ना अब एक ट्रेंड आ गया है, सबके सामने चिल्ला नहीं सकते हो आप. आपको आराम से कॉफी ले जाओ या लंच ले जाओ, आराम से बोलो, एंड ऐसा बोलो डिप्लोमेटिकली. उन लोग सब देखो, अगर जोर से झाड़ दिया, चिल्ला दिया, आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई एम बैड विद हिंदी, तो दे फील बैड. तो ऐसा काउंट में बोलो कि दे नो व्हाट दे आर डूइंग. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वन थिंग मैम वाज टेलिंग मी, लाइक स्टाफ को कैसा, how to promote them, how to money important structure कैसा retain करेगा. Definitely trainings big. आप एक चीज सर जी ने सही कहा है, एक बंदा मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आया था मेरा पर्सनल में, वो आप कैलकाटा से था, एंड वो हिज फादर के, उसका पापा मम्मी आके बोला मेरा बेटा को सिखा दो हेयर कटिंग. हम बोला कितना दिन लगेगा, इतना पैसा लगेगा. और 3 महीना का कोर्स सिखाने के बाद फादर टर्निंग बैक एंड टेलिंग मी इन बंगाली, मेरा बेटा कुछ नहीं सीखा है. आई सेड कर तो रहा है, हम तो आपका तरह सीखना मांगा था. आई सेड भैया 21 साल लगा सिडनी आने में, हेल्पर से लेके देन स्टाइलिस्ट लेके, 21 साल का तपस्या को मैं ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं, मेरा बेटा बोला सब भैया का साथ सीखेगा, 3 महीना में भैया का तरह काटने लगेगा. अच्छा, this is what So it is. this is So very we have- real. very These problems important, are and very real. Trust me, and salon. you have actually taken us through the daily life of a salon owner, and one Sydney. thing, one चीज I want to आप लोग की बोलने चाहता हूँ मैं, sorry, don't mind, ये बेटा कर दो, आप तो मेरे बेटे हो, बेटा है, ये है, वो है, बेटा, and then they're gone. What I understand personally, बेटा बोलो, फैमिली मत बना दो. I make sure मेरे स्टाफ को, trust me, you are my बेटा. मेरा घर में मेरा अपना 10 साल का बेटा है, तुम भी मेरा बेटा हो, मेरे करण अर्जुन हो तुम. But party karo. I party with my staff. I party. I take them to, when we have picnic na, I take them to the villa, staff, drink, enjoy. But one thing you understand, my darling, काम तो आपको करना पड़ेगा. तो ट्रस्ट मी, मैं आई एम वेरी लकी. मैं काम करता हूँ सुबह सैलून 10 से, मैं आता हूँ 2 बजे, बिकॉज आई हैव माय फादर्स वर्क ऑल्सो. मैं 12 बजे तक भी काम करता हूँ. मैं अपने स्टाफ को ऐसा ड्रिल कर दिया हो, बेटा तुमको भी काम करने, क्या मुफ्त में काम नहीं हो रहा, आपको भी तो पैसा मिल रहा है ना, टिप्स का अलग से. So this is what I understand. ये Yeah. सैलरी देना एक होगा ना, सैलरी दे दिया है, सैलरी के सामने you also getting a butter. So Yeah. don't be like, be thankful about it. ऐसा नहीं. So this is very important. You have to keep them you have to be like their father, but not family. तब तो advantage लेना start. Yeah, so be a father figure and not a father. Shine, I'm coming to you now. So we have basically discussed all the problems that salon owners face with staff, and all the problems are real, as we can see from the audience's response. हर एक ने ये problems face की हैं, पर इसका solution क्या है? क्या business processes इसका solution है? If you have some sort of protocol or SOPs to follow, क्या इसमें से काफ़ी सारे problems taken care हो जाएंगे? Absolutely. I think protocol होना बहुत important है. I think rules regulations होना बहुत important है, especially जब आप hire करते हो तभी से. If you're going to see, I'm very strict that way. Like you spoke about, are you supposed to treat your staff like family? Yes, I do. I mean, I think maximum time हम family के साथ, family से ज़्यादा हम उनके साथ spend करते हैं, right? But they are not like family. But you are supposed to treat them good, no doubt. You are supposed to treat them good. You're supposed to, but इतना अंदर मत घुसो कि वो सब आके आपको प्रॉब्लम बताए, मेरे घर पे ये हो गया, वो हो गया. Then you give them little, then it just keeps increasing. I think there is a certain amount of distance मैं maintain करती हूँ मेरे टीम के साथ, right? But मैं उनको एक as a mentor, as a trainer, I make sure that they get educated as much as they can professionally, right? So that is what I do. I don't like treat them like super duper family, because at the end of the day, like sir also said, आप कितना भी कर लो, वो कभी आपके whole or soul रहने नहीं वाला. We also have a team who has been working for 5 years. We have team who has been working for 10 years also. Yeah. But at the end of the day, आपको आपकी टीम को कंट्रोल में रखना आना चाहिए.
एंड समवेयर आपके प्रोटोकॉल्स बहुत मैटर करते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही आप एक सेट रूल्स अगर आप फॉलो करते हो और जैसे कि मैंने बोला यू डोंट बेंड डाउन, यू मेक श्योर दैट दिस इज व्हाट वी वांट, बिकॉज जब आप एक सैलून स्टार्ट करते हो आपका एक मेंटालिटी होता है एज अ बिजनेस ओनर, यू वांट दैट यू नो इतना बिजनेस होना चाहिए, या you know this is the kind of standardization I want, this is the right way to do things. So make sure you take that to your team also, and वो उसके accordingly वो adjust हो. Possibly एक हर सबके साथ होता है, कोई न्यू टीम आता है तो उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, बिकॉज पॉसिबली जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनका उसका वर्क कल्चर अलग होगा, उसका जो ओनर है वो अलग है, तो आपके टीम में एडजस्ट होने को उनको टाइम लगेगा, बट यू डोंट लेट गो, ओके, गिव इट अ मंथ, मे बी 2 months, राइट? धीरे धीरे एज एंड व्हेन दे स्टार्ट एडजस्टिंग टू द प्रोटोकॉल्स, आई थिंक यू नो योर लाइफ विल बी इजियर, एंड देन उनको फिर वो चेंज करने में डिफिकल्टी होगा, राइट? सो मैं जैसे मेरे स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, मेरे टीम को भी बोलती हूँ, आपका सैलून का भी ग्रेड्स होता है, जैसे कि होटल्स में होता है 3 स्टार होता है, 4 स्टार होता है, 5 स्टार होता है, राइट? वो स्टार्स क्यों मिलते हैं? नंबर 1, एक तो आपके एम्बियंस की वजह से, आपका सैलून साइज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीम, राइट? मैं अभी भी जैसे कि रैडिसन ब्लू में वी आर स्टेइंग, आई ऑलवेज ऑब्जर्व कि हाउ द टीम इज, राइट? आर दे बीइंग वेरी कर्टियस, उनका हॉस्पिटैलिटी कैसा है, वो वेलकमिंग है या नहीं? सो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपके सैलून को एक 5 स्टार बनाता है, एंड दैट्स व्हाट आई ऑल्सो टेल माई टीम कि येस, व्हाट यूर ऑफरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो सर्विस दे रहे हो वो भी 5 स्टार देना चाहिए, बट ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो ग्रीटिंग है, like welcoming them, making sure that the client is comfortable, ये सारे चीजें as a owner you need to put it in front to a team, क्योंकि वो not necessary वो सीख के आते हैं ये सारे चीजें, and yeah, so that is what I feel. Yes, there is a thorough training that you need to give them since day one अगर आप एक new team को hire करते हो तो. राइट, तो वी अग्री दैट प्रोटोकॉल्स या एसओपीज होने चाहिए. अशोक जी, क्या करियर पाथ भी उनका डिफाइन होना चाहिए ताकि वो आपके साथ बने रहें, जो आपने ट्रेनिंग दी है दे स्टिक टू दैट, वो आपके साथ रहें और आपके साथ ही अपना करियर बनाएं, तो कुछ पाथ उनके लिए डिफाइन करना ज़रूरी है? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जिन बच्चों को हम सिखाते हैं, 2 चीज़ें एक साथ काम करती है. हम अपने सैलून के स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको एजुकेशन देते हैं जी, और वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ काम करते हैं. दूसरा, एक ट्रेंड ये भी है कि जैसे हम किसी को सिखाते हैं और वो जब हमारा काम देखते हैं कि इतना कमा रहे हैं, इतना ज़्यादा इनकम हो रही है, एक कट का 1000 ले रहे हैं, 1500 ले रहे हैं, 2000 ले रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं खुद मालिक बन जाऊं? या अभी क्यों मैं यहाँ पे नौकरी करूं? और जैसे अभी ट्रेंड चला कोविड के बाद घर जाके काम करने का, घर घर जाके काम करना. हमारे बाप दादा पहले घर घर जाके काम करते थे, हमने बड़ी मुश्किल से उसको बंद किया, बहुत मुश्किल से, कि घर में जाके काम मत करो, इज्जत नहीं रहती यार. हमें 4 घंटे बिठाते हैं, न जाने कहाँ बिठाते, पानी भी नहीं पूछते हैं, चाय भी नहीं पूछते हैं. परंतु आज इतनी बड़ी हिंदुस्तान में फौज खड़ी हो गई है कि झोला लिया और चल दिए, और एक गांव में घुसना है उनको. एक गांव मतलब एक कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स में 50 मकान होंगे, 100 मकान होंगे, वो पूरा धंधा स्किन का तो साफ, पूरा स्किन का धंधा साफ. तो आजकल जो मैं समझता हूँ कि 30% 35% स्किन का धंधा चौपट हो गया है, रूट टचअप चला गया. तो आज इतना बड़ा फौज है हमारे बेरोजगारी की. अच्छा, मैं मेरे सैलून के अंदर यदि 8 घंटे काम करता हूँ, यदि 2 घंटे मेरे पास क्लाइंट नहीं है, तो मेरा जो वर्किंग आवर्स है, मेरा श्रम है, वो वेस्ट गया है. तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो स्टाफ है और हम हैं, जिस तरह से जिनको हम ट्रेन करते हैं, वो हमारे साथ ज़्यादा टिकता है और हमें अंडरस्टैंड करता है, समझता है, और उसी की योग्यता के अनुसार हम उसकी सैलरी डिसाइड कर सकते हैं. एक बहुत महान लोगों ने कहा है कि यदि आपको म्यूजिक सुनना है, अच्छा संगीत पसंद करते हैं, अच्छी धुन सुननी है, तो सितार के तार को न तो ज़्यादा टाइट कीजिए
और ना ढीला छोड़िए। ये जो ऑनर है, जो डायरेक्टर हैं, उनको बहुत ही एक जो हमारा कर्मचारी है, जो काम करने वाला, उसके ऊपर नजर रखनी जरूरी है। और एज ए फादर, एक गार्जियन की तरह नजर रखना, मालिक की तरह दादागिरी अभी नहीं चल सकती। ये कर, वो कर। अभी तो कोई मेरा बेटा बच्चे नहीं सुनते हैं। हाँ, स्कूल में बच्चे टीचर की नहीं सुनते हैं, जल्दी से जाके कंप्लेन कर देते घर जाके, मेरे को डांटा, मेरे को मुर्गा बनाया। हम तो 4-4 घंटे मुर्गा बनते थे स्कूल में। स्केल पढ़ते थे ऐसे, थप्पड़ इतनी पड़ती थी, मम्मी बोलती है और जाके कि इसको और मारो, पढ़ नहीं रहा इसको और मारो। तो अभी काफी मुश्किल हालात हैं। मतलब मारना अच्छी बात नहीं है, परंतु हम गलत के साथ भी कभी कभी भी खड़े होते हैं। और स्टाफ की मेंटलिटी ऐसी चेंज होती जा रही है कि आप सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं, तो कल तो मुझे भी काम करना स्टेज पे जाके, मैं कब सेलिब्रिटी बनूंगा। और जैसे ही उनको 4 कस्टमर पूछना शुरू कर देते हैं, अरे वो है नहीं, वो कहाँ गया, तो बस उसके कॉलर खड़े हो जाते हैं, उसकी चाल बदल जाती है। दूसरे महीने कहता है सर ये कम हो रहा है, इसमें थोड़ा कमीशन ऐड करना पड़ेगा, और अब मैं इस तारीख में छुट्टी पे रहूंगा। तो मुश्किलें काफी है, हमें डर लगा रहता ना। तो वही कह रहा हूँ कि बैलेंस हमें बड़ी मुश्किल से, और रोजमर्रा की जिंदगी में हमें उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। एज ए जी। गार्जियन, जी उनको बीमार हो गई, कोई तकलीफ हो गई है, उनकी घर में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है, उनको छुट्टी चाहिए, छुट्टी देनी चाहिए। पर हिंदुस्तान में 365 दिन होते हैं। हिंदुस्तान में क्या दुनिया में होते हैं एक साल में, और 365 दिन में 300 त्योहार होते हैं। नहीं मैम, सही बोल रहा हूँ। तो कभी तो क्या क्या याद धार्मिक उत्सव होते हैं, घर में शादियां होती है, बर्थडे पार्टी होती है, दोस्त की पार्टी होती है, तो आए दिन मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ, मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ, मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ, और कभी की खिसक लो। तो एक हमारे जो बिजनेस का नेचर है वो भी ऐसा ही है। मैं, मेरी दुकान है, चाहूँ जब खोलूं, मैं, मेरी दुकान है, चाहे जो प्रोडक्ट यूज करूं, मेरी दुकान है, मैं चाहे जो रेट फिक्स करूं, ये सब मेरे ऊपर डिपेंड है। मेरी दुकान में चाहे जिसको रखूं या चाहे जिसको निकाल दूं। जी तो हमारा बिजनेस का जो नेचर है वो जरूरी नहीं है कि तो मुझे- अगर उसमें स्ट्रक्चर होगा, या। अगर उसमें बिजनेस प्रोसेस होगा, जब भी आप किसी को हायर करते हैं तो उसे पहले ही बता दिया जाएगा कि ये फॉलो करना है। अगर छुट्टी चाहिए तो एप्लीकेशन देना है या ऐप पे रिक्वेस्ट डालनी है, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर अप्रूव करेगा। ऐसा कुछ प्रोसेस अगर डाल दें। देखिए, एक मैं जो समझता हूँ आज के टाइम में, हम बहुत अच्छा फर्नीचर बनाते हैं, बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, बहुत अच्छा मेकअप कर लेते हैं, पर सैलून मैनेजमेंट के बारे में अभी तक 90% लोगों को जानकारी नहीं है, मैनेज करना नहीं आता, और मुझे भी नहीं आता है। यदि मुझे आप कहोगे सैलून मैनेजमेंट अच्छा करना है तो मुझे नहीं आता है, मुझे कहोगे सोशल वर्क करना है तो बहुत अच्छा कर लेता हूँ। तो सबका अपना अपना एक नॉलेज है। जी ये हेयर, वो जो कौन सा अच्छा हेयर करती है मैं नहीं कर सकता, मैं इनके सामने कमजोर हूँ। तो इसलिए ये प्रॉब्लम तो है। तो हम समझते हैं कि एक बैलेंस करना जरूरी है एज ए गार्जियन, परंतु एक जो सैलून मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हमें सॉल्यूशन निकालना चाहिए, और सैलून मैनेजमेंट की टीचर्स की हमें ज्यादा जरूरत है आज, जो कम है इंडिया में। जी जी सिडनी, यू वांट टू ऐड अनुष्का समथिंग? जी, आप बता दीजिए आपका क्वेश्चन क्या था। सॉरी, हिंदी में बताइए आपका क्वेश्चन क्या था। स्ट्रक्चर, या स्ट्रक्चर होना चाहिए, करियर ग्राफ होना चाहिए स्टाफ के लिए, और बिजनेस प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहला बात यहाँ पर सैलून, हम लोग कहाँ बैठ, आई एम सॉरी माय हिंदी माइट बी रॉन्ग, प्लीज फॉरगिव मी। ये सैलून मैनेजमेंट कांग्रेस है, ये एक नया सा पैनल है। ओके, वी ऑल बिलीव दैट हाउ मेनी आर सिटिंग, और एक हेयर शो चल रहा है बाहर। सो सर जी ने जो कहा द वर्ड मैनेजमेंट, अभी ये मैनेजमेंट ना बीपीयूज में बहुत अच्छा लगेगा, लाइक बिग बिग ब्रांड्स में वो मैनेजमेंट, सैलून मैनेजमेंट। मैं आपको और एक एकदम छोटा सा बात बोलता हूँ, ये प्रोटोकॉल करना, हमारे पास इंडिया में इतना सैलून है, दिल्ली में इतना सैलून है, बहुत सैलून है, कोई कोई का 50 ब्रांच है, कोई कोई का 2 ब्रांच है, कोई कोई का 1 ब्रांच है। तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज 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 गाइड मी इफ आई एम रॉन्ग। ये अवेयरनेस, छुट्टी, एप्लीकेशन, ये चलता है जो बड़ा सैलून होगा। And for salon, the owner, the very small nature, bhaiya, sir, madam, I'm not coming.
So very importantly, firstly we have to understand salon के तरह that आज हमें भी corporate में काम करना है. We also have to work systematically. ये नहीं एक ऐप ले लिया and we start with it. ये we have to drill them कि you know अब ये ऐसा है, we are slowly coming out, हम लोग बाहर निकल रहा है and we are doing now becoming more professional, what we use the word. And very importantly as a salon owner over here, जब हम लोग एक टीम बनाते हैं, एक सपना बनाते हैं, सो वी आर फादर एंड वी आर मदर, हम लोग को तो पहले से स्टार्टिंग हो जाता है मेरा कौन सा बच्चा रहेगा, मेरा कौन सा बच्चा जाएगा, बट हम लोग कुछ बोलते ही नहीं है. लाइक यू नो वी इजंट, am I right or wrong? Tell me sir. Like we come to know, we understand how it is. Like sabka, like today my Guruji, today when I started with Bridget Jones, I was nothing, I was zero. She was a celebrity, but there was a time I was best staff of, मेरा उसका best staff था, but मेरे को निकलना पड़ा. And but एक चीज है, I always give dues to her, whatever respect. So very importantly as a owner we get to know कौन आने वाला है, because अब जब group meeting हो तो everything will be good. But as a owner we come to know who is going to stay and who is not going to stay. So like accordingly we have to work out. और ये salon चीज ऐसा है ना, बहुत personal business है, इसमें ज्यादा rude नहीं हो सकता है, इसमें more we have to be diplomatic rather being rude. मेरा नेक्स्ट सवाल जो है वो 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स से रिलेटेड है और मैं चाहती हूँ कि हम इसे एक रैपिड फायर मोड में लें. तो मुझे क्विक सॉल्यूशंस अगर आप बता सके, वॉट एवर इज कमिंग टू द टॉप ऑफ माई माइंड. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद शाइन. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज स्टाफ छोड़ के चला जाता है, एट्रिशन. व्हाट इज योर सॉल्यूशन टू दैट? एट्रिशन हो जाता है, ग्रुप में चला जाता है या योर स्टार परफॉर्मर्स चले जाते हैं अचानक से. यस, व्हाट डू यू डू? मेरे साथ भी हुआ है वैसे. दिस वाज काफी टाइम पहले हुआ था, वेयर 3 of them साथ में, एंड दैट टू दैट देयर वाज अ ग्रुपिज्म जो हुआ था, लाइक पॉलिटिक्स, आप इनको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, उसको नहीं सपोर्ट कर रहे हो, उसके वजह से 3 people left, not because they were getting higher salary and all. But somewhere I feel इतने years के बाद they still talk to me, they still regret the fact that they did that, और कहीं ना कहीं वो एक guilt feeling है उनको. वो उनकी तरफ से हो रहा है, पर जब वो छोड़ के गए आपने क्या किया? अभी नया स्टाफ हायर करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू. लाइक आई सेड, मी बीइंग द क्रिएटिव पार्ट, आई कैन स्टिल हैंडल द क्लाइंट्स टिल दैट टाइम, बट ऑब्वियसली जब क्लाइंटल बहुत बड़ा हो जाता है तो इंडिविजुअली आप क्या ही कर सकते हो. एट द एंड ऑफ द डे यू कांट डू एवरीथिंग, एब्सोल्युटली राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका टीम स्ट्रांग रहे. मैं एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन दूंगी इसके लिए कि आप उनके टीम में, व्हाट डू यू कॉल दैट रूल, डिवाइड एंड रूल, राइट? सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड इम्प्लाई. थोड़ा आप स्टाफ को डिवाइड करके रखिए, जितना हो सके आपस में थोड़ा झगड़ा होना अच्छी बात है एक्चुअली. That is something that actually works, because the more friendly they are, it kind of gets difficult to make. बहुत funny सा example दूंगी. मेरे टीम में there have been I think almost 2 couples who have ran away. मतलब उनके बीच में relationship हो गया है और वो फिर छोड़ के चले गए. तो अभी हमें ऐसे लगता है कि दो कोई ऐसे यूनिसेक्स है तो मेल फीमेल दोनों स्टाफ होते हैं, तो अगर हमें लगता है कि अरे इन दोनों का कुछ तो चक्कर होने जैसा है तो हम टाइमिंग बदल देते, दोनों का वीक ऑफ बदल देते. That's a bit extreme. Sydney, I'll come to you. I'll just want her to finish that rapid I think divide and rule is something that you can imply. Don't let them get extra friendly with each other. Okay. The next problem that everyone faces is poaching. जब poaching होती है तो आप क्या करते हैं? वैसे तो आई एम टोटली अगेंस्ट पोचिंग. मैं कभी नहीं करती, और कोई मुझे बोलता भी है करने के लिए, आई एम टोटली अगेंस्ट दैट कल्चर. वेल, दो लोग करते हैं बिकॉज सम पीपल फील इट्स राइट. जब पोचिंग होता है, आई मीन इट्स अप टू द टीम आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज उनको अगर ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, इफ दे फील दैट दे विल डू वेल, देन दे वुड गो. I think as far as आप अगर ultimately I think it comes to salary, right? Everyone अगर उनको अच्छा salary मिल रहा है, it's comfortable, उनके घर के पास है, traveling में comfortable है, client के साथ उनको अच्छे clients मिल रहे हैं, so they will stay back, right?
So if you are able to pay well, and if you're making sure that they stay happy, they have good clients, then I think they should stay back. आप कितना भी poach Right. कर लो. और third problem है high salary demand. How do you tackle that? So we don't mind paying people high. So depending on how well they work, like जैसे सर ने बोला था कि लोग आते हैं high salary मांग के, but जब उनका काम देखते हैं तो then they are like literally zero. How many people are creatives here? यहाँ पे मतलब जो salon owners है, कितने लोग creative है और कितने लोग investors है? कितने लोग investors है यहाँ पे? Anybody? Audience, you can raise your hands. क्या investors हैं कोई यहाँ पर? क्या सारे creative लोग हैं जो salon owners हैं? I think they are all creative. They are all Yeah. creative, this thing. So what was the question? Salary. The salary issue. So you can obviously pay them according to their skill set. Day one से obviously you can't expect कि जैसे कि 4 times what the salary is. They ideally should give you that much business, then it is worth paying that. But Yeah. initially अगर आपका salon pickup नहीं हो रहा है तो you need to invest that money on your team, but slowly and gradually make sure that they are giving you that much return to you. But कहीं ना कहीं एक investment होता है एक team, right? अगर आपको पता है उनका काम अच्छा है, उनके पास अच्छे clients हैं already, तो आपके लिए वो एक प्लस पॉइंट रहेगा. तो सैलरी आप दे सकते हो ज्यादा as far as they are efficient enough to work that much. Yeah, if it and is their skill justified, set is they good. सकते Yes, हैं. yes, absolutely. अशोक जी, I'm coming to you now. ये 3 टॉपिक्स पर सॉल्यूशंस बताइए. स्टाफ अचानक छोड़ के चला जाता है, पोचिंग होती है और हाई सैलरी डिमांड होती है. काफ़ी सारे कॉस्मेटिक कंपनी के लोग मेरे पास आते हैं और चेयर पे सामने बैठते हैं. मैं उनसे पूछता हूँ अभी किस कंपनी में हो. पहले किसी और कलर कंपनी की तारीफ कर रहे होते हैं, फिर दूसरे महीने किसी और कंपनी की तारीफ कर रहे होते हैं, फिर तीसरे महीने किसी और कंपनी की तारीफ कर रहे होते हैं. तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं मेरे स्टाफ को बिठा के कहता हूँ भाई तुम छोड़ के जाओगे तो मुझे काम आता है. मुझे भी काम आता है. तो छोड़ के चले भी जाते हैं, काफ़ी लोग गए हैं, और जब छोड़ के जाते तो बहुत बुरा लगता है. और मेरे सैलून में उनको मैं बोलता हूँ कि मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आपको अच्छी सैलरी दूंगा, और आप यदि नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं तो और एक्स्ट्रा एजुकेशन दूंगा. क्योंकि हमारे जो सैलून है और हमारा जो उदयपुर शहर है, मैं जहाँ से रहता हूँ, वहाँ से मैं समझता हूँ इंडिया में काफ़ी अवार्ड जीत के लाए हैं. जी. और ऐसे बच्चे जीत के लाए हैं जो गरीब घरों से हैं, कच्ची बस्तियों में रहते हैं, उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं. तो मैं उनको, मेरे स्टूडेंट्स को और स्टाफ को वादा करता हूँ कि यदि तुम नेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ. मैं मेरे बच्चों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, तुम भी मेरे बच्चों की तरह हो. तो ये मेरा उनको एक रिलेशन हमारा मजबूत बनता है. और उदयपुर शहर में एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने एसोसिएशन बना रखा है. तो यदि मेरा स्टाफ छोड़ के कहीं जाता है तो अगला मुझे पूछता है इसको रखूं या नहीं रखूं. तो उनको ये डर रहता है कि मैं वहां पहुंच गया तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं हमें एक यूनिटी डेवलप करनी जरूरी है. पर जब वो लोग हाई सैलरी की डिमांड करते हैं तभी आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए सही है, जब हम सैलरी देते हैं तो क्लाइंट को देखते हुए इधर उधर छुप जाते हैं. अरे पेडिक्योर आ गया, मैं उधर चला जाता हूँ, मैं नहीं करूँगा. और जब हमने चेंज कर दिया कि आपको कमीशन देंगे तो कमीशन देंगे तो खड़े रहते हैं, हर क्लाइंट को नमस्कार करते हैं, हेलो हाय करते हैं, चाय कॉफी पूछते हैं. पर सैलरी होती है तो कहते हैं सैलरी तो मेरी मीटर चल ही रहा है. बिल्कुल. तो आपको कुछ अपना प्लानिंग इस देने में हमें किस तरह से देना है, और वाजिब देना चाहिए. क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि सैलून की जान हमारा स्टाफ है, दूसरा हमारा टीम वर्क है. टीम वर्क है. हम अकेले लूडो खेलते एक ही मोबाइल पे खेलते ना, अकेला आप खेल नहीं सकते हो. ये फुटबॉल का मैच है, क्रिकेट का मैच है.
तो उस तरह से हमें खेलना Teamwork मिलजुल के काम जरूरी करना है, है, जी। तो हमारी बॉन्डिंग हमें मजबूत करनी बहुत जरूरी है. बिल्कुल. Sydney, over to you, and please make this quick. We are really running out of time. Attrition, poaching, and salary. I'll cut it short in 2 minutes. Yes. Poaching. भैया लाख रुपया चाहिए. हम तो टोनी एंड गाइस है करके. Very simple as a hair stylist. आपको लाख रुपया चाहिए, ओके. 5 टाइम का बिजनेस दीजिए, लाख रुपया मिल जाएगी. Very simple. और दूसरा चीज was poaching of staff. You know what? I'm a very God-fearing person. I believe in God. God will not come down and tell me क्या चाहिए, and I will not say भगवान हुआ. I give my best to my staff. अब भैया तुम्हारा मर्जी है, जाओ या ना जाओ, but I am there. I am alive for my salon. बस this is what I want to tell you. Thank you so much, Sydney. It was an awesome panel. बहुत कुछ सीखने को मिला है और real time problems के solution भी मिले हैं. Unfortunately, I don't have time for questions. So the experts are available. You can take your questions offline with them. I would request the speakers to step on so that we can take a photo. मैम Please. थैंक यू. इस पैनल को थैंक्स, और आप जो ऑडियंस और हमारे ग्रेट लीजेंड बैठे हैं सामने, उनको बहुत बहुत थैंक. आपने हमें एक अवसर दिया, और मैं ये समझता हूँ कि ये डिस्कशन हमारे कम होता है. ये हाँ, विचार विमर्श होना बहुत जरूरी, डिस्कशन होना बहुत जरूरी. थैंक यू.